لاہور میں 9 ٹاؤن کارپوریشنز بنانے کا فیصلہ۔ ٹاؤن کارپوریشن کے اراکان کی تعداد 65 ہوگی۔ میئر کے انتخاب کے لیے الیکٹورل کالج 665 اراکان پر مشتمل ہوگا۔ میئر، دونوں ڈپٹی میئرز مشترکہ امیدوار منتخب ہوں گے۔ علی ساحد رپورٹ کریں گے۔ شہر میں 9 ٹاؤنز کارپوریشنز بنیں گی۔ ٹاؤن کارپوریشن کے ہاؤس کے ارکان کی تعداد 65 ہوگی۔ 50 یوسی چیئرمین بطور ایکس آفیشو ممبران ٹاؤن کارپوریشن کا حصہ ہوں گے۔ ٹاؤن کارپوریشن میں بالواسطہ منتخب 15 مخصوص نشستیں شامل ہوں گی۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ میئر اور 2 ڈپٹی میئرز کا انتخاب بالواسطہ اور جماعتی بنیادوں پر ہوگا۔ میئر، دونوں ڈپٹی میئرز مشترکہ امیدوار کے طور پر منتخب ہوں گے۔ میئر، ڈپٹی میئرز کے انتخاب کے لیے شو آف ہینڈز کے ذریعے ووٹنگ ہوگی۔ میئر کے انتخاب کے لیے الیکٹورل کالج 665 ارکان پر مشتمل ہوگا۔ الیکٹورل کالج میں 650 یونین کونسل ممبران ہوں گے۔ الیکٹورل کالج میں 15 مخصوص نشستوں کے ارکان شامل ہوں گے۔ میئر، ڈپٹی میئر کے امیدوار کارپوریشن ہاؤس کے اندر سے یا باہر سے نامزد ہو سکیں گے۔ مخصوص نشستوں میں خواتین کی 7 اور غیر مسلم کی 2 نشستیں شامل کی گئیں۔ لیبر 3، ٹیکنوکریٹ 1، یوتھ کی 1، معذور افراد کی 1 نشست شامل ہے۔ 7 لاکھ سے زائد آبادی والے شہری علاقوں میں نیا ٹاؤن سسٹم نافذ ہوگا۔ شہری نظم و نسق بہتر بنانے کے لیے مقامی سطح پر نیا انتظامی ڈھانچہ ہوگا۔ ٹاؤن کارپوریشنز کے قیام کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ ٹریفک قوانین کی پاسداری کے مثبت نتائج۔ رواں ماہ ہیلمٹ کی خلاف ورزیوں میں 61% کمی، سڑکوں پر کم عمر ڈرائیورز کے وائلیشن میں 82% نمایاں کمی دیکھی گئی ہے۔ علی ساحد سے تفصیلات جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا علی۔ بالکل، موٹر وہیکل ترامیم کے بعد ٹریفک پولیس کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں بڑے پیمانے پر کارروائیاں جاری ہیں، جس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب وقاص مجید کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ رواں ماہ ہیلمٹ کی خلاف ورزیوں پر 61% کمی ہوئی ہے۔ کم عمر ڈرائیور کی وائلیشن میں 82% کمی آئی ہے۔ غیر محفوظ گاڑیوں کی وائلیشن میں 77% کمی آئی ہے۔ صوبہ بھر میں رانگ پارکنگ کی خلاف ورزیوں میں 45% کمی آئی ہے، جبکہ حادثات میں بھی بڑے پیمانے پر کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ پنجاب کے اربن ایریاز میں مہلک حادثات میں 56% کی نمایاں کمی ہوئی ہے۔ گزشتہ 10 روز میں 31 اضلاع کے اربن ایریاز میں کوئی بھی مہلک حادثہ یعنی جان لیوا حادثہ پیش نہیں آیا۔ ڈی آئی ٹریفک پولیس کی جانب سے پنجاب ٹریفک پولیس کو بہتر کارکردگی پر شاباش دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں کہ باغوں کے شہر میں سردی نے دستک دے دی ہے، خنکی بڑھنے لگی۔ شہر میں درجہ حرارت 22 ڈگری، راتیں مزید ٹھنڈی ہونے کا امکان ہے۔ فضائی آلودگی میں لاہور دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار۔ لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 411 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، افشاں رضوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افشاں، موسم کا احوال بتائیے گا۔ آپ کو موسم کے حوالے اگر بتائیں تو سردی اور خنکی جو ہے بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ باغوں کے شہر میں سردی نے پوری طرح سے دستک دے دیا اور اب سردی کی جو ہے شدت وہ محسوس کی جا رہی ہے، جبکہ فضائی آلودگی اپنے عروج پر ابھی بھی برقرار ہے۔ دنیا بھر میں فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا دوسرا نمبر ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت AQI انڈیکس کی مجموعی شرح 411 ریکارڈ کی گئی ہے اور مختلف علاقوں میں 600 سے 200 تک AQI انڈیکس ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ گلبرگ 2 میں ایئر کوالٹی انڈیکس 650 تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ علامہ اقبال ٹاؤن میں 520 تک AQI انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سول سیکریٹریٹ میں 510 جبکہ برکی روڈ پر 390 AQI انڈیکس ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح DHA5 میں 320 اور کینٹ میں 290 تک AQI انڈیکس ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کر لی جائے تو اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو کہ کم سے کم 11 تک جانے کا امکان ہے۔ 2 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں بھی چل رہی ہیں، لیکن یہ ہوائیں اتنی زوردار نہیں ہیں کہ فضائی آلودگی کو اڑا کے رکھ سکیں، اور اس کے باوجود محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ آج پورے دن میں 10% امکانات ہیں بارش برسنے کے، اور جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 18 دسمبر سے باقاعدہ ایک طاقتور سپیل جو ہے ملک میں داخل ہوگا، جس کے باعث لاہور شہر میں بھی بارشیں برسیں گی اور شہری جو یہ موسمی بیماریوں میں مبتلا ہیں، نزلے کی، کھانسی کی، گلے کی بیماریوں میں جو مبتلا ہیں، ان سے انہیں نجات مل سکے گی۔ لیکن جب تک بارش نہیں ہوتی ہے، شہریوں کو احتیاط کرنے کا کہا جا رہا ہے، ماسک کا استعمال لازمی کرنے کو کہا جا رہا ہے اور سردی سے بچنے کے لیے بھی گرم ملبوسات پہننے کا کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، افشاں رضوان ہمیں موسم کا احوال بتانی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔
अभी आपको बताएं कि एलपीजी की डिकेटिंग के खिलाफ सिविल डिफेंस का क्रैकडाउन जारी है। नवंबर में जिला भर में 144 कार्रवाइयां की गईं। कार्रवाइयों के दौरान 134 मुकामात पर खिलाफ वर्जी पाई गई। खिलाफ वर्जी के मरतकब 134 पॉइंट सरबमोहर किए गए। खिलाफ वर्जी पर 132 मुकदमात का इंदराज किया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे, ताहिर खान से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एलपीजी की डिकेंटिंग यानी कि एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में मुंतकिली जो कि गैर कानूनी अमल है और ख़तरनाक अमल है, इसके खिलाफ सिविल डिफेंस की जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। गुज़िश्ता माह यानी कि सिर्फ नवंबर की ही अगर बात करें तो इस क्रैकडाउन में जो कि नवंबर के महीने में किया गया, इस दौरान 144 जो कार्रवाइयाँ हैं वो सिर्फ ज़िला लाहौर में की गई हैं। यानी लाहौर की मुख्तलिफ जो 10 तहसीलें हैं उसके अंदर ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। मुख्तलिफ पॉइंट्स जो कि एलपीजी को गैर महफूज तरीके से एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में मुंतकिल कर रहे थे, यानी इसकी डिकेंटिंग कर रहे थे, उनकी वहाँ पे कार्रवाइयाँ की गई और 144 ये कार्रवाइयाँ थी, जिसके नतीजे में 134 ऐसी मुकामात हैं जहाँ पे खिलाफ वर्जियाँ पाई गई और इसके नतीजे में ये तमाम 134 जो पॉइंट्स हैं इन्हें सरबमोहर यानी कि सील कर दिया गया। इसी तरह 132 जो मुकदमात हैं उनका इंदराज भी किया गया, यानी कि FIR दर्ज की गई है और इन कार्रवाई। ताहिर खान, बहुत शुक्रिया। चिराग चौक चौरंगी अमर सिद्धू के इलाके की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इलाके की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। तफसीलात जानेंगे फरीहा बतूल से, आगाह कीजिए फरीहा। बिल्कुल, इस वक्त मैं चुंगी अमर सिद्धू के इलाके चिराग पार्क में मौजूद हूँ। ये इलाका मसाइल का घर बन चुका है। तरक्याती काम भी सुस्त रवि का शिकार है। बिजली की हाई वोल्टेज तारें लोगों के घरों के सामने से गुजर रही हैं, जबकि गटरों के ढक्कन भी मौजूद नहीं है, जो किसी भी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। हमारे साथ मकीन मौजूद है। ये ना हमारे इलाके में कोई 3-4 माह से जो है ना तरक्याती काम शुरू हुए थे। तो पहले वाटर सप्लाई का पाइप डाला है, तो उसमें भी कोई उन्होंने 3 माह लगाए हैं, तो सब लोग जो है ना बड़ी मुश्किल से गुजरते रहे हैं। अभी फिर दोबारा से कोई महीना डेढ़ हो गया है, तो ये रोड बनाने के लिए उन्होंने इधर खुदाई की है। तो ये इतने सुस्त रवि का शिकार है कि लोगों का आना जाना, बच्चों का बाहर जाना, ख़वातीन का आना जाना बहुत मुश्किल है। तो बराए मेहरबानी इसको जल्दी जो है ना तरक्याती काम को ख़त्म किया जाए, ये रोड को बनाया जाए। इसके साथ हमारे ना ये बिजली के मसाइल हैं। ये तारें ना नीचे आप देखें, अगर इस तरफ देखें तो रोड के ऊपर पड़ी है। बच्चे अगर उसको हाथ लगाएं तो कोई हादसा हो सकता है। फरीहा, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक़िद, वोटिंग का अमल जारी है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के दौरान 15 मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में वोटिंग का अमल जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम, बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हैं वो मुनक्कद हैं, जबकि मैं इस वक्त तांदा के करीब यूनियन कौंसिल 66 में मौजूद हूँ, जबकि मजमूई तौर पर 15 के करीब मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल्स हैं जहाँ पर आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। इस पार्टी के रहनुमा मेरे साथ मौजूद। अच्छा बताइएगा कि मजमूई तौर पर कितने कैंडिडेट्स हैं जिनके दरमियान जो है वो मुकाबला हो रहा है, और बाकायदा तौर पर यह भी बताया मुझे कि कितने वोट हैं या जो अपने राय दही इस्तेमाल करें। जी, यूसी 66 में हमारे 3 पैनल खड़े हुए हैं जी, जिसमें हमारा सदर है, यूथ का सदर है और लेडी सदर है। ये 3 पैनल खड़े हुए हैं और इधर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो रजिस्टर्ड वोट हैं, जो हमारे रुकन बने हैं, वो तकरीबन 27 वोट हैं इस यूनियन कौंसिल के। तो इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गहमा गहमी है, बहुत कांटेदार मुकाबला चल रहा है। तीनों उम्मीदवारान और उनकी सारी टीमें मुतहर्रक हैं। आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जोशो खरोश है। 3 उम्मीदवार हैं यहाँ पर। आप मुझे बताइएगा कि अभी कब इलेक्शन शुरू हुआ, उसकी टाइमिंग क्या थी, कब इख्तिताम होगा, और कितने आप ये समझते हैं कि जो वोटर हैं वो अपना राय दही इस्तेमाल करें। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से ये चौथा मरहला है इंट्रा पार्टी इंतखाबात का, और सुबह 11 बजे पोलिंग स्टार्ट हुई, 4 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। और इस टाइम 15 यूनियन कौंसिल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात चल रहे हैं। इसी तरह ही गहमा गहमी है, पोलिंग का सिलसिला जारी है और तकरीबन 39 उम्मीदवार जो है वो मैदान के अंदर है। कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे सब्ज़ाज़ार से। 13वीं इंटर स्कूल जिमनास्टिक चैंपियनशिप के मुकाबले तकरीब तकसीम इनामात जारी है। तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद से। जी राव। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने NA 129 और PP 172 की मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, मुलाकातें की हैं पार्टी रहनुमाओं से, जबकि 13वीं इंटर स्कूल जिमनास्टिक चैम्पियनशिप में भी शिरकत की है। बात करते हैं टैलेंट हंट के हवाले से। आजकल बड़ी बात भी हो रही है, टैलेंट हंट बड़ा आजकल सुपर हिट प्रोग्राम जा रहा है। इसकी तरवीज के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के बैनर तले क्या होने जा रहा है? देखें, इस साल आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि हमने इस साल क्रिकेट और बॉक्सिंग का कराया,
3.5 लाख से ज़्यादा बच्चे बच्चियों ने, बल्कि 3.25 लाख के करीब बच्चे बच्चियों ने शिरकत की सिर्फ 2 इवेंट्स में। अगले साल 23 इवेंट होने जा रहे हैं, 23 गेम्स के अंदर, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, यू नेम इट। तो हमें लगता है कि इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद बच्चे बच्चियां आएंगे, उनमें से जो टैलेंट निकलेगा वो टैलेंट जो है उसकी हम ग्रूमिंग करेंगे। प्राइम मिनिस्टर का बहुत क्लियर मैसेज है कि मेरिट की बुनियाद पर इन बच्चों की सिलेक्शन होगी, और जो सिलेक्ट होंगे जब इनकी ट्रेनिंग्स कराएंगे तो दुनिया के हम नए हीरोज़ तैयार कर रहे हैं। मैं मिसाल देता हूं कि क्रिकेट के अंदर शुएब अख्तर साहब और हारिस रऊफ 140 से ऊपर गेंद करने वाले में मशहूर हैं। इस टैलेंट हंट में 100 लड़का ऐसा निकल कर आया जो 140 से ऊपर गेंद करता है। शहबाज शरीफ साहब ने आते ही डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को भी बहाल किया, और हमने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी इन्वेस्ट किया। तो ये एक ना कंटिन्यूस एफर्ट होती है। अरशद नदीम 2012 में आया था और 12 साल के बाद वो ओलंपिक्स जीता। तो हम अब दोबारा उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। हमारा इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का नहीं, एशिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम लॉन्च हो चुका हुआ है। नेफ्टेक और टेफ्टास, जो रीजनल टेफ्टास हैं, उनके साथ मिलके हमारा टारगेट जो अगला साल है, इस साल हमने 12 लाख बच्चे बच्चियों को पाकिस्तान से बाहर इज्जत के साथ जॉब्स दिलाई। अगला साल हमारा मिनिमम टारगेट 24 लाख का है। तो हम अपने बच्चों को इज्जत के साथ स्किल्ड लेबर, हम उनकी ट्रेनिंग्स भी करा रहे हैं, हम दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग्स करा रहे हैं और उनको बाहर एडजस्ट करवा रहे हैं। जी, आपने गुफ्तगू सुनी राना मशहूद अहमद खान। जी राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। छुट्टी के रोज़ लाहौरियों ने मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। शहरी जल्लो पार्क में बच्चों और फैमिलीज के हमरा मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे समरा से। जी समरा, बताइएगा। बिल्कुल, आज छुट्टी का रोज़ है और छुट्टी के दिन को यादगार बनाने के लिए लाहौरियों ने मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। इस वक्त भी मैं जल्लो पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर फैमिलीज़ की बड़ी तादाद हमें देखने में नज़र आ रही है। फैमिलीज़ यहाँ पर ख्वाबों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं, वहीं बच्चे भी मुख्तलिफ झूलों से जो है वो महसूस होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर स्कूलों के बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं, फैमिली भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि आज जल्लो पार्क आई हुई है, कैसा लग रहे हैं यहाँ आकर? बच्चे हमारे बहुत इंजॉय कर रहे हैं